Hello students, I am Chaya ma'am from Kendriya Vidyalaya Railway Gandhidham. Today we will understand the question answer of noses. The most important topic is punctuation. Before starting the assignment, I request you to watch the video of noses if you have not watched it yet. That video will help you to understand the question answers easily. Now let's start. So first we will see new words. You need to understand the pronunciation. So when I speak the words, you have to repeat after me. The first word is mirror, breathing, sticking, sticks, funniest, space, giggle, grow, spare, shout, stuck, handle, doubt. Now let's see the another thing, that is question answer. The first question is, why does the poet feel that the nose is a funny thing? Answer is, the poet feels that the nose is the funniest thing because it stucks like a handle with two little holes. वो कैसे चिपका हुआ है? जैसे कि हैंडल हो वैसे, और ऊपर से उसके अंदर दो होल्स भी है. That's why the poet thinks that it is a funniest thing. Now question number 2. Why is a nose important for you? So we all know that nose is important for breathing. Now let's see the question number 3. Question number 3 is, does the child in the poem like her nose? Why do you think so? So the answer is yes. The child in the poem likes her nose because she thinks that the nose is the funniest thing. The child likes her nose because the nose is the funniest thing. Let's move ahead and now punctuation. So punctuation is very important in not only in English but in any language. First of all, we need to understand what is meaning of punctuation. Punctuation मतलब क्या? So children, आपने देखा होगा जब भी आप रीडिंग करते हो तो रीडिंग करने के वक्त उसके अंदर कुछ मार्क्स होते हैं, जैसे कि वहाँ फुल स्टॉप किया हुआ है या क्वेश्चन मार्क किया हुआ है. तो ये सारे जो मार्क्स हैं उन्हें कहते हैं पंक्चुएशन. क्या कहते हैं उन्हें? पंक्चुएशन. लेट्स सी. Punctuation includes marks that help the structure of a sentence and help the reader to understand the sentence. Punctuation से हमें sentence को समझने में आसानी होती है. Whether the sentence is a question, whether it is a simple sentence, ये सब समझने के लिए हमें क्या help करता है? Punctuation mark. So some punctuation marks are here. First is full stop, then question mark, this is comma. These marks are called quotation, then this is apostrophe, exclamation mark. Apostrophe you have seen in full form and short form. Whenever we write like what is, तो हम short form में क्या लिखते हैं? What's. तो what और s के बीच में जो ऊपर कॉमा करते हैं, it is called apostrophe. चलिए आगे देखते हैं. Punctuation helps the reader to know where the sentence begins or ends, where to pause, etc. तो पंक्चुएशन हमें यहाँ भी हेल्प करता है. जब भी अगर कोई सेंटेंस है जहाँ पीछे हमने फुल स्टॉप देखा तो हमें समझ में आ जाता है सेंटेंस एंड्स हियर. अगर वहाँ पर हमने कॉमा देखा तो हमें समझ में आता है कि हमें वहाँ पे पॉज देना है और सेंटेंस अभी आगे और भी है. तो पंक्चुएशन इस टाइप से हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. अब पंक्चुएशन करने के कुछ रूल्स भी है. अगर हमें किसी सेंटेंस को या किसी पैराग्राफ को पंक्चुएट करना है तो उसके कुछ रूल्स हैं. हमें कैसे पता चलेगा क्या करना पड़ेगा हमें? सो लेट्स सी द रूल्स. फर्स्ट इज
फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस शुड बी कैपिटल। कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे, चाहे वो क्वेश्चन है या फिर एनी सिंपल सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल करना पड़ेगा। जैसे कि ये सेंटेंस है दिस इज एन एप्पल, तो दिस इज एन एप्पल में हमने टी जो है वो क्या किया है, कैपिटल। क्यों कैपिटल किया है? बिकॉज टी इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस सेंटेंस। ये पूरे सेंटेंस में टी जो है वो क्या है, फर्स्ट लेटर है। सेकेंड देखो, वॉट इज दिस, तो वॉट में डब्ल्यू क्या है, कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है और सेंटेंस है, तो सेंटेंस में फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल। हमेशा याद रखना है, कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल करना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। सेकेंड इज द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी नेम शुड बी कैपिटल। फर्स्ट लेटर किसी भी नाम है, कोई भी नाम है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल करना है। अब नाम, चाहे वो किसी पर्सन का नाम है, चाहे वो किसी सिटी का नाम है, चाहे किसी बिल्डिंग का नाम है, कोई एनिमल का नाम है। एनिमल का नाम मतलब क्या? अगर हम लिखेंगे दिस इज अ डॉग, तो डॉग में डी कैपिटल नहीं करेंगे, डॉग नाम नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे टॉमी इज माई डॉग, तो टॉमी वो डॉग का नाम है, तो हम टॉमी में टी कैपिटल करेंगे। सेम वे लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर। दिस इज अमित, तो अमित इज अ नेम ऑफ अ बॉय, तो इसलिए हमने क्या किया, ए को कैपिटल किया। भले ही वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, पर हमने ए को क्या किया, कैपिटल, क्योंकि वो नाम है। सेकेंड इज अमित इज माई ब्रदर। अमित क्या है, अमित इज माई ब्रदर। तो अमित में हमने यहाँ पे देखो दो रूल्स लग रहे हैं। पहला रूल क्या है कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, पर यहाँ पर फर्स्ट लेटर में क्या है, नाम है एक बॉय का, तो बॉय का नाम है, तो इसीलिए हमने फर्स्ट लेटर क्या किया है, कैपिटल। Let's see the third sentence. Third sentence is he will come on Wednesday. He will come on Wednesday. अब Wednesday क्या है, एक डे का नाम है। Wednesday क्या है, एक डे का नाम है, तो इसीलिए हमने Wednesday में क्या किया है, W कैपिटल किया है। Then I live in Ahmedabad. नाम अहमदाबाद is the name of the city. तो सिटी का नाम है, इसीलिए हमने ए क्या किया है, कैपिटल। तो आपको समझ में आ गया, कोई भी नाम है तो नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आएगा, कैपिटल। चलिए, नाउ थर्ड रूल इज आई शुड बी कैपिटल ऑलवेज। आई मतलब क्या, मैं। आई एम छाया, आई एम अ गर्ल, तो वहां पर जहां पे भी आई आएगा सेंटेंस में, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है या वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, कहीं पर भी आई आएगा तो आई हमेशा क्या होगा, कैपिटल। उसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट इज आई एम अ गर्ल, तो आई आ गया तो आई इज कैपिटल। प्लीज वेट आई एम कमिंग, अब देखो यहाँ पर आई जो है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, पर फिर भी हमने आई को क्या किया है, कैपिटल। प्लीज वेट आई एम कमिंग, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, आई चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, सेंटेंस के लास्ट में आए या सेंटेंस के बीच में आए, आई शुड बी कैपिटल ऑलवेज। हमेशा आई कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ही विल कम टुमारो, आई रिप्लाइड, मैंने कहा ही विल कम टुमारो, तो आई यहाँ पर भी आई क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो समझ में आ गया, 3 रूल्स हमने देख लिए। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड कोई भी नाम आ रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, थर्ड आई हमेशा कैपिटल, आई शुड बी कैपिटल ऑलवेज। नाउ द फोर्थ रूल इज फुल स्टॉप इज यूज्ड टू एंड द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं और उसका वो सेंटेंस के लास्ट में हमें फुल स्टॉप करना है, ठीक है, तो ही हमें पता चलेगा कि सेंटेंस यहाँ पर एंड हो रहा है। अगर हमने वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं किया है, दैट मीन्स सेंटेंस वहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, सेंटेंस अभी भी बाकी है। और फिर भी अगर आपने फुल स्टॉप नहीं किया और सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट कर दिया है, दैट मीन्स यू आर
रॉन्ग, आपने गलत कर दिया है, आपके नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर है फुल स्टॉप इज यूज्ड टू एंड द सेंटेंस। तो एंड द सेंटेंस में हमें फुल स्टॉप करना है। अब देखो इस सेंटेंस में एक गलती है, आप बता पाएंगे मुझे क्या गलती है पंक्चुएशन में? ये जो सेंटेंस लिखा है स्कूल विल स्कूल विल रीओपन ऑन ट्यूसडे, तो क्या गलती है इसमें? यस, तो इस सेंटेंस में फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, ये गलती है। इस सेंटेंस में फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, और यहाँ पर ट्यूसडे में टी तो कैपिटल दिया ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन। जैसे कि हम कभी खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, है ना? तो जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, हम कहते हैं हुर्रे। इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं या सेंटेंस आते हैं तो उसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। देखिए यहाँ पर दिखाया है लुक एट द माउंटेन, कोई बहुत खुश होके कह रहा है लुक एट द माउंटेन। सेकेंड इज व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत सुंदर फ्लावर्स है, फ्लावर्स की तारीफ हो रही है, तो वहां पर लिखा है व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो इसके दोनों के पीछे क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क इंडिकेट्स दैट स्पीकर इज आस्किंग अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मार्क क्या इंडिकेट करता है कि ये क्या है? क्वेश्चन है, और स्पीकर क्या कर रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे या किसी और से भी, पर क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, अब हमें समझ में आ रहा है कि ये एक सेंटेंस है, लेकिन वो क्या है? क्वेश्चन है, तो पीछे क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर में सबसे पहले तो डब्ल्यू कैपिटल क्योंकि ये सेंटेंस है, और पीछे क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है सेंटेंस। सेकेंड इज व्हेन विल यू रिटर्न माई पेंसिल, सो व्हेन विल यू रिटर्न माई पेंसिल, अगेन क्वेश्चन मार्क पीछे, तभी हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है, एंड फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल, व्हेन। नेक्स्ट इज कॉमा इज यूज्ड, ये जो मार्क है इसे कहते हैं कॉमा। क्या कहते हैं? कॉमा। सो कॉमा इज यूज्ड टू ब्रेक द सेंटेंस, इट ऑल्सो सेपरेट द आइटम्स इन द लिस्ट सो दैट वी मे रीड इट इजीली। तो क्या होता है कॉमा? कॉमा वहां पर होता है, एक तो हम सेंटेंस को ब्रेक करना चाह रहे हैं, या तो फिर एक सेंटेंस में कुछ आइटम्स, अलग अलग आइटम्स दी हुई है, उसका लिस्ट पूरा दिया हुआ है, तो उनके बीच बीच में हम कॉमा लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि इसके आगे और भी है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट इज आई बॉट मैंगोज, एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानाज। मैंगोज, तो मैंगोज के बाद में क्या दिया है यहाँ पर? कॉमा। एप्पल्स, एप्पल्स के बाद में क्या दिया है? कॉमा। दैट मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि पीछे और भी है, मैंगोज के पीछे एप्पल्स भी है, एप्पल्स के पीछे ऑरेंजेस भी है, एंड बनानास। प्लस हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पॉज देना है, जैसे कि आई बॉट मैंगोज, एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मदर योर बेबी इज सिली, मदर योर बेबी इज सिली। तो यहाँ पर देखो मदर, योर बेबी इज सिली, ये दोनों पार्ट है, और दोनों पार्ट को अलग करने के लिए बीच में क्या दिया है? कॉमा। लेट्स सी कोटेशन। तो ये जो कॉमा है इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, कोटेशन भी कहते हैं, प्लस ये जो दोनों मार्क्स है उसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पर यूज होता है? इन्वर्टेड कॉमा टेल्स यू दैट समवन इज टॉकिंग डायरेक्टली। डायरेक्टली जब भी कोई दिया हुआ होता है सेंटेंस किसी का, जैसे कि अगर दिया है ही सेड, उसके बाद में सेंटेंस दिया है, आई रिप्लाइड, उसके बाद में सेंटेंस दिया है, मदर स्पोक, उसके बाद में सेंटेंस दिया है। तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस डायरेक्टली दिया है, जैसे कि यहाँ देखो आई हैव डन नथिंग, ही रिप्लाइड, उसने ये आंसर दिया दैट ही हैज डन नथिंग। अगर ऐसा लिखा होता कि ही हैज डन नथिंग, ही रिप्लाइड, तो वो डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है आई हैव डन नथिंग, हु सेड दिस सेंटेंस? ही। तो यहाँ पर डायरेक्टली सेंटेंस दिया है,
इसीलिए यहाँ पर ऊपर क्या दिया है, इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, या तो फिर इसे कहते हैं कोटेशन। अनदर इज ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, हियर मटर्ड मीन्स टू स्पीक इन अ लो टोन, मतलब धीरे से अपने आप से बात करना। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, क्या कह रहा है, आई विल कम टूमोरो, मैं कल आऊंगा, आई विल कम टूमोरो। तो ये भी सेंटेंस है, इसने बोला है, दैट्स वाई इट इज रिटन इन इन्वर्टेड कोमा। इसके बीच में क्या किया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। पंक्चुएशन मार्क्स सारे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, फुल स्टॉप कहाँ यूज होता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज होता है, कॉमा कहाँ यूज होता है, कोटेशन कहाँ यूज होता है, एपोस्ट्रॉफी कहाँ, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। एपोस्ट्रॉफी का मैंने आपको बता दिया कि एपोस्ट्रॉफी एक तो हम फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं उसमें यूज होता है, जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। और दूसरा एपोस्ट्रॉफी कहाँ यूज होता है, जैसे कि अगर हम ये कहें कि दिस इज रीनाज पर्स, तो रीनाज पर्स, तो पीछे जो एस लगता है उसके पीछे ऊपर हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पंक्चुएशंस के बाद में, पंक्चुएशन अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके लिए मेरे पास एक होमवर्क है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पंक्चुएशन को ध्यान से समझना है, उसके बाद में आपको ये होमवर्क करना है। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज, दिस पैसेज इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में ये पैसेज दिया है और टेक्स्ट बुक में स्पेस भी दिया है उसको सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इस पंक्चुएशन सॉरी इस पैराग्राफ को पंक्चुएट करके आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ठीक है, एंड देन यू हैव टू सेंड मी द फोटो। इतना करना है, इस पैराग्राफ को पंक्चुएट करना है और पंक्चुएट करने के बाद में आप मुझे फोटो सेंड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट होमवर्क इज, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंस। ये भी एक काम है आपका। मैंने आपको कुछ क्लूज दिए हैं, इस क्लूज को यूज करके आपको 5 सेंटेंसेस बनाना है। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंस। तो फर्स्ट तो क्या करेंगे, आप नाम लिख देंगे, दिस इज माई फेवरेट फ्रूट। देन हाउ डज इट स्मेल, कैसी स्मेल होती है उसकी। व्हाट इज इट्स कलर, कलर लिखेंगे। उसका शेप कैसा है, किस शेप का दिखता है आपको, ये लिखेंगे आप। देन टेस्ट, हाउ डज इट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है, वो सार है या स्वीट है, किस टाइप का टेस्ट है, ये आप लिखेंगे। देन इन विच सीजन डज इट कम, कौन से सीजन में आता है ये फ्रूट, इसके बारे में लिखेंगे। अगर उसकी कोई स्पेशलिटी है, उसको कोई स्पेशल यूज होता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज है उस फ्रूट के, तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। सेंटेंस 5 से ज़्यादा हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक। इसके लिए भी आपके टेक्स्ट बुक में स्पेस दिया हुआ है। ये दोनों होमवर्क आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है एंड सेंड मी द फोटोज। ओके चिल्ड्रन, आई होप you understood the rules of the punctuation and the questions. Also I hope you understood the homework. Bye.